Hello students, good morning everyone. Students, here today in this video I'm going to summarize chapter 5 in geography, which is the agriculture, and you already have learnt about this chapter in your previous classes through my audio explanations. So this video is all over to recall all the topics which we have studied under this chapter. So this chapter is about the agriculture, and in this chapter we'll discuss about the major rabi and the kharif crops, as well the factors which influence the agriculture and types of farming and the farms in India and the USA. Okay, means what type of modern technologies are using in the India and the USA. Okay, so first of all let us understand about the meaning of the agriculture. So the term agriculture, it has origin in the Latin word which is mean the ager, which means the field. Okay, ager, which means the field, and cultura, which means the culture. Okay, so agriculture refers to mainly tilling of the fields. Okay, what does agriculture refers? So agriculture means the tilling of fields to cultivate any crop. Okay, it is termed as the agriculture. Or agriculture includes rearing of livestock, as well sheep, goats, pigs, horses, etc. Okay, and some types of agriculture has special names. कुछ टाइप के एग्रीकल्चर जो होती हैं उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं. जस्ट लाइक फिश ब्रीडिंग इज कॉल्ड द पिसी कल्चर. फिश ब्रीडिंग को क्या कहते हैं? पिसी कल्चर. ओके, एंड सिल्क वॉर्म्स rearing means rearing the silkworm is called sericulture. ओके, सेरीकल्चर कहा जाता है जब हम सिल्क वर्म्स को रेस करते हैं. ठीक है, तो उसको सेरीकल्चर कहा जाता है. एंड कीपिंग बीज फॉर हनी, दैट इज कॉल्ड एपीकल्चर. एंड ग्रोइंग ग्रेप्स is called the viticulture. Okay, while when you grows the flowers and vegetables, that is called the horticulture. Okay, these are the various types of farmings which people used to grow. Okay, now let us understand what are the factors which influence the crop cultivation. But here is a term which is known as the organic farming. Organic farming means क्या होता है? It is a type of farming, it is a system or method of farming where people are genetically not you modified. Okay, means the fields are not improved and people use the manure as a natural fertilizers. Okay, तो जिसमें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं एग्रीकल्चर की वो नहीं यूज़ होती हैं. ट्रेडिशनल वे में एग्रीकल्चर की जाती है विदाउट यूजिंग द chemical fertilizers and pesticide. This is called the organic farming. Okay, so students, next is there are various factors which influence the crop cultivation. Okay, so which are the physical factors and socio-economic factors which influence the types of farming. So जो physical factors होते हैं, there is the climate, landforms and the soil. Okay, and in the socio-economic cultures, सोशो इकोनॉमिक में क्या होता है? यहाँ पर आपका कैपिटल होता है, मीन्स इन्वेस्टमेंट होता है, हाउ मच यू इन्वेस्ट, द फर्टिलाइजर्स, द टेक्नोलॉजीज एंड द डेवलपमेंट ऑल्सो, मैकेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं सोशो इकोनॉमिक में. And the physical factors just like climate, if there is a harsh climatic conditions where there is a low temperature or where is very high, वैसे अगर आप कह सकते हैं कोल्ड है, जो अबंडेंट रेनफॉल है, तो वहाँ पर क्या होगा? क्रॉप कल्टीवेशन नहीं होगा. कूलर एरियाज होती हैं, एक्सट्रीम हॉट होती हैं, हार्श कंडीशंस होती हैं, सो देर इज़ अ very less agriculture to be practiced. And the landforms, just like if there is in the mountainous areas, these are not suitable for agriculture. Plateaus are not suitable for agriculture, while plains are more suitable for agriculture just because it has a fertile soil. And plains are made up of the alluvium soil. माउंटेन्स में क्या होता है? लेवल लैंड की लैक होती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस हार्श होती हैं, सॉइल का थिन लेयर होता है, इसीलिए माउंटेन सूटेबल नहीं होते. मोस्ट ऑफ प्लेन्स आर सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर. ऐसे ही सॉइल का होता है, ईच टाइप ऑफ सॉइल इज़ नॉट सूटेबल फॉर एवरी टाइप ऑफ एग्रीकल्चर. अब जैसे कि ब्लैक सॉइल इज़ सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन, अलुवियम सॉइल इज़ सूटेबल फॉर ग्रोइंग व्हीट एंड राइस. मीन्स सीरियल्स जो होते हैं मोस्ट ऑफ
लिवियम सॉइल में ग्रो किए जाते हैं। तो अलग अलग टाइप की क्रॉप्स होती हैं जो सीटेबल होती हैं डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स के लिए। ओके, सो दीज आर द मेजर फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट इज types of agriculture. So there are various types of agriculture. Specifically on the basis of the availability of land, agriculture is categorized into two, which are the intensive agriculture and extensive agriculture. Okay, so let us understand about the extensive. एक्सटेंसिव में क्या होता है, हियर यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दिस टर्म एक्सटेंड। एक्सटेंड मीन्स क्या आता है, व्हेन यू प्लस समवन, मतलब किसी भी चीज़ को आप बढ़ाते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, एक्सटेंड करना किसी भी चीज़ को। एंड इंटेंस मीन्स क्या होता है, वेर यू डू एनीथिंग ऑन द स्मॉल स्केल, सो दैट इज इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। बट इन एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर में क्या होता है, the plots are very large, more amount of capital and labor is employed on the large plot of land, and at the same place people practice these type of agriculture. Means extensive agriculture is practiced where there is the sparsely populated regions, ठीक है, जहाँ पर population कम होती है, लैंडफॉर्म्स अवेलेबल ज़्यादा होती है, वहाँ पर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर होती है। और इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लेबर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। और समटाइम्स इन दीज रीजन्स इन द एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर पीपल प्रैक्टिस ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप ओवर अ ईयर। मतलब क्या था, पूरा साल में वो एक टाइप की क्रॉप ही कल्टिवेट करते हैं। एंड इट इज़ टोटली मैकेनाइज एंड वेल डेवलप्ड एंड मॉडर्नाइज्ड। ओके, नेक्स्ट इज द इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव में क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ फार्मिंग वेयर पीपल प्रैक्टिस एग्रीकल्चर ऑन अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। क्या होता है, स्मॉल प्लॉट पे होती है, लेबर और जो कैपिटल होता है वो स्मॉल स्केल पर इन्वेस्ट होता है। ओके, से स्मॉल स्केल पर होता है, एक्सटेंसिव में इसका ऑपोजिट होता है। ओके, सो इट कैन बी प्रैक्टिस बाय अ पर्सन विद हिज फैमिली ऑल्सो। एंड इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इंटेंसिव में क्या होता है, अ पर्सन फुलफिल देयर ओन नीड्स, लोग अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं। और एक्सटेंसिव में दे कल्टिवेट द क्रॉप फॉर सेलिंग। और नेक्स्ट इज on the basis of the objectives of the cultivation is two types, subsistence agriculture and as well the commercial agriculture. Okay, so let us see about the subsistence agriculture. Subsistence agriculture में क्या होता है, जैसे आपने substitute सुना होगा, substitutions में क्या होता है, when you can use anything on the place of other. Okay, so this is practiced especially by the poor farmers whose plots are very small, so they can produce just enough to support their families and they hardly gain any surplus क्रॉप्स। ठीक है, उनके पास उतना ही वो इनफ प्रोड्यूस कर पाते हैं जितना वो खुद में कंज्यूम कर सकें, बाकी इनफ नहीं होता है कि वो सेल कर पाएँ। एंड इन ऑर्डर टू गेट द गुड यील्ड people use lots of manual labor, क्योंकि क्या होता है, they have the small plots so they cannot use the modern machines like tractors and the harvesters in their field. तो क्या होता है, वो manual labors का यूज़ करते हैं। and in most of cases farmers dependent on the rainfall, ठीक है, so and they also don't get any type of good seeds, fertilizers, pesticide, so their fields yields are often low. और subsistence agriculture में people practice sometimes shifting agriculture and it also includes the nomadic herding. And in ancient time this was in most of practice like shifting agriculture. तो देखते हैं shifting agriculture क्या था। तो shifting agriculture it is practiced by moving tribal communities. क्या होता है shifting agriculture, shift means क्या होता है, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, मतलब आप क्या स्टेबल नहीं होते हो, ठीक है। सो इट इज़ वी कैन से इट इज़ अ टेम्पररी टाइप ऑफ एग्रीकल्चर वेयर पीपल क्लियर सिंगल प्लॉट ऑफ लैंड, मीन्स स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। एक कुछ समय के लिए फिल्ड्स को क्लियर किया जाता है और वहाँ पर क्रॉप कल्टीवेशन किया जाता है। एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज द स्लैश एंड बर्न मेथड, ठीक है, स्लैश एंड बर्न मेथड भी कहा जाता है क्योंकि इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग नेचुरल वेजिटेशन इज कट डाउन एंड इट बर्नड ऑन द प्लेस
and ash is mixed with the soil which indicates the fertility of the soil. ठीक है, तो इस तरीके से स्लैश एंड बर्न मेथड को यूज़ किया जाता है. एंड this type of this shifting cultivation is called the zoom in नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. ये अलग अलग नाम से जानी जाती है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर अलग जगह पर. ठीक है, जूम कहा जाता है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, मिल्पा कहा जाता है मैक्सिको में, एंड इट इज़ कॉल्ड द लदांग इन मलेशिया, वाइल इट इज़ नोन एज रोका इन ब्राज़ील. ओके, तो ये अलग अलग नेम होते हैं, यू मस्ट नो अबाउट इट. ओके, नेक्स्ट इज नोमैडिक हर्डिंग. नोमैडिक हर्डिंग में क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम वेयर रेजिंग एनिमल्स आर अलाउड ऑन द फील्ड्स टू ग्रेज ऑन द नेचुरल वेजिटेशन. ओके, next is the commercial agriculture. Commercial agriculture, it is a type of farming where crops are grown mainly for sale. ठीक है, कॉमर्शियल इज रिलेटेड टू द ट्रेडिंग. ठीक है, तो ये मार्केट से रिलेट करता है. तो इसमें क्या होता है? सरप्लस क्रॉप्स कल्टीवेट की जाती है. स्पेसिफिकली कल्टीवेशन जो होता है वो एक एम रख के किया जाता है, किस लिए? टू सेल एंड टू गेन मोर प्रॉफिट. एंड पीपल्स आर स्पेशलाइज्ड टू ग्रो अ सिंगल क्रॉप, and these type of farming is especially highly organized. It use modern technologies and pesticide fertilizers. Okay, and commercial agriculture में होती है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, प्लांटेशन होता है, डेयरी फार्मिंग, रैंचिंग. ओके, so let us see the commercial grain farming. Commercial grain farming is a farming is usually carried on large scientifically managed farms. ठीक है, where there is small or low population, and machines are used to operate the farms, and sowing, threshing and harvesting also, and few number of people are involved in these type of agriculture, and extensive agriculture is practiced in the commercial grain farming. And usually cereals are grown in the commercial grain farming, and this is also known as the mixed farming, just because in this type of agriculture people cultivate the crops along the एनिमल हस्बेंड्री. ठीक है, जहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री और क्रॉप कल्टीवेशन दोनों होता है उसको कहा जाता है मिक्स फार्मिंग, जो कि कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में आती है. ओके, नेक्स्ट इज द प्लांटेशन एग्रीकल्चर. प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज दैट वेयर द people cultivate tea, coffee, cocoa. So these type of specific क्रॉप्स आर कल्टीवेट अंडर द प्लांटेशन. ठीक है, तो टी कल्टीवेशन है, कॉफ़ी है, रबर है, ये क्या होता है? एक सिस्टमेटिक वे में और एक अरेंज ऑर्गेनाइज वे में कल्टीवेशन किया जाता है, जिसको प्लांटेशन कहा जाता है. ये एक लॉन्ग टर्म होती है, मतलब पूरा साल में एक ही टाइप की क्रॉप कल्टीवेट की जाती है. इट इज़ हाईली लेबर एंड capital intensive crops. Okay, next is ranching. Ranching means raising the animals primarily for sale. ठीक है, एनिमल्स को रियर करना किस लिए? फॉर द मोटिव ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड द रैंचिंग ऑन द लार्ज फॉर्म्स. ठीक है, यहाँ पे भी मैनेज एंड साइंटिफिक तरीके से एनिमल्स को रियर किया जाता है. नेक्स्ट इज डेयरी फार्मिंग. डेयरी फार्मिंग, इट इज़ अ टाइप ऑफ कमर्शियल रेजिंग which is called the milching. Milching क्या होता है? Means rearing the animals especially for the dairy products. ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए एनिमल्स को रियर करना क्या होता है? मिल्चिंग कहा जाता है. ठीक है, एनिमल्स को मिल्च करना मतलब एनिमल्स को डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए रियर करना. ओके, so this is about the types of agriculture and the factors which influence the type of agriculture, and I hope all the topics are clear here. And remaining portion like the world pattern of agriculture, कि वर्ल्ड वाइज जो कंटिनेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है या फार्मिंग मेथड्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में. एंड ऑल्सो वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. सो हियर इट इज़ अ डिफरेंशिएशन अबाउट दैट. ठीक है, ये आपको दिख रहा है. यहाँ पर हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे ग्रोइंग कंडीशंस के बारे में, वेरियस क्रॉप्स के बारे में, और देखेंगे इंडिया और यूएसए के फॉर्म्स में क्या वेरिएशंस हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं. ओके, सो टिल यू मस्ट हैव टू रीड द चैप्टर, डू द गिवन वर्क एंड आस्क इफ यू गॉट एनी टाइप ऑफ डाउट्स, एनी प्रॉब्लम. ओके.